Hello everyone, welcome to Education Ways. In this video, we are going to do class 9 Mathematics NCERT chapter 7 Triangles Introduction Part 2. Today we are going to talk about two most important concepts of geometry, which is first altitude of a triangle, second median of a triangle. These two concepts are very important in solving geometrical problems not only in class 9 but in your higher classes also. So let's start with an altitude of the triangle. See, what is altitude of a triangle? Altitude of triangle है क्या? So it is a line segment. According to definition, altitude क्या है बेटा? Is a line segment from a vertex of a triangle perpendicular to the up. If I name this triangle ABC, let's name it A, B and C. A, B and C. मैंने इसको ABC नेम दे दिया. Now in this AB, BC and AC are line segment and they are joined end to end at point A, point B, point C. So point A, point B and point C are vertices of the triangle. Vertices is the plural of vertex. So if I say A is a vertex, B is a vertex and C is a vertex. Now come to the definition to altitude of the triangle. A line from a vertex. अब मैं पहले vertex A को consider करता हूँ and I am drawing a line from A, line segment from a vertex of the triangle perpendicular to the opposite side. Now we have to see if A is a vertex, which side is opposite to A? It is BC. Now if I try to draw a line segment from A which is perpendicular to BC, it will be like this. ये इस तरह से आएगी बेटा. C and I name it AD. इसको AD नेम दे देता हूँ. Okay, so AD is an altitude. Similarly, from other two vertices, we will also get a altitude. और altitude क्या करता है बेटा? It is perpendicular to opposite side of the vertex. जिस vertex से altitude आ रहा है ना, उसकी opposite side पे वो perpendicular होगा. So it will form an angle of 90 degree here. This will be the angle of 90 degree. That means angle ADB. Similarly, angle ADC will be 90. Now let's draw other two altitudes. One from B and another from C. अब B से कैसे altitude आएगा? B is a vertex and opposite to B we have a line segment AC. So यहाँ से एक perpendicular AC के ऊपर जाएगा. Similarly, if I take C as a vertex, I will draw a perpendicular to AB, which is opposite to C. C के opposite side है और C से जो line segment यहाँ जाएगी वो perpendicular होगी AB के ऊपर. C. So CF is perpendicular on AB and B is perpendicular on AC and AD is perpendicular on BC. In this way we have three altitudes. One is AD, second is BE, third is CF. AD is perpendicular on BC, so for AD, BC is a base. When we talk about altitude BE altitude की बात करें तो बेटा BE के लिए बेस AC है क्योंकि वो AC के ऊपर perpendicular है. And for CF base is AB. And we will get some right angle. Which are those right angles? Let's see. When AD is perpendicular on BC, we get angle ADB is equal to angle ADC is equal to 90 degree. ADB and ADC 90 होगा. Similarly, when BE is an altitude on AC, base AC, so we will get angle BEC and angle BA as 90 degree. Similarly, when CF is perpendicular on AB, I will get angle CFA is equal to angle CFB is equal to 90 degree. So these are the altitude in case of acute angle.
Now let's understand the altitudes in case of right triangle. अब here I have a right triangle ABC which is right angle at B, जो 90 उसका कहाँ बन रहा है B पे. So now if I try to draw an altitude, see how I will draw the altitude in this case. Now according to the definition, altitude is a line segment from the vertex of a triangle perpendicular to the opposite side. So first मैं ले रहा हूँ वर्टेक्स ए, और ए के अपोजिट कौन सी साइड है बी सी. अब मैं इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ना ए से, सी हाउ परपेंडिकुलर विल गो. सी क्या ये परपेंडिकुलर है? नो, या 90 डिग्री बन नहीं रहा. सो इट कैन नॉट बी एन एल्टीट्यूड. ये भी नहीं हो सकता. लेकिन ये एल्टीट्यूड बनेगा कैसे? ये एल्टीट्यूड होगा इस पॉइंट पे. जब ये जो येलो लाइन है ना विच इज एन एल्टीट्यूड, इट विल ओवरलैप साइड ए बी. इसकी साइड ए बी को ओवरलैप कर लेगी. तो अगर मैं ए बी, देन दिस ए बी विल बी एन एल्टीट्यूड. सो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल साइड्स कैन ऑल्सो बी एन एल्टीट्यूड. साइड्स को हम एल्टीट्यूड कंसिडर कर सकते हैं. अब हम इसी तरह से मैं सी से एक बार ट्राई करता हूँ एल्टीट्यूड ड्रॉ करना फ्रॉम वर्टेक्स सी. अब सी के अपोजिट हमारे पास कौन सी साइड है? ए बी. सो ए बी पे हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं. तो इज दिस एल्टीट्यूड? नो. व्हाई नॉट? बिकॉज ये परपेंडिकुलर नहीं है ए बी पे. अब ये परपेंडिकुलर कैसे होगी बेटा? जब सी, जो ये येलो लाइन है ना विच इज एन एल्टीट्यूड, ओवरलैप सी बी. सी बी को ओवरलैप कर लेगी. ओवरलैप मीन्स एकदम कवर कर लेगी. तो ये कवर कर ली इसने. तो इसमें दो एल्टीट्यूड तो ए बी एंड बी सी ही हो गए विच आर द साइड्स ऑफ दैट राइट ट्रायंगल. और एक एल्टीट्यूड, और इनके बीच में जो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये ए बी सी रहेगा. और इसमें अगर सी बी को हम एल्टीट्यूड मानते हैं तो ए बी विल बी द बेस. एंड इफ वी कंसीडर ए बी एज एन एल्टीट्यूड, बी सी विल बी द बेस. नाउ देयर विल बी वन मोर एल्टीट्यूड, बिकॉज किसी भी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स तो होते ही हैं. तो तीसरा एल्टीट्यूड कहाँ जाएगा? वो आएगा वर्टेक्स बी पे, बी से. इट विल कम फ्रॉम वर्टेक्स बी एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स बी. बी के अपोजिट कौन सी साइड है? ए सी है. विच साइड इज अपोजिट टू वर्टेक्स बी? इट इज ए सी. सो इन दिस वे वी विल ड्रॉ एन altitude from B which is perpendicular on AC. Then we will get an right angle here and here. So इसको मैं E नेम दे देता हूँ. B is an altitude. So 3 altitude in case of right angle triangle are AB, BE and BC. अब इसमें भी हम देखें तो AB and BC are also sides of the right triangle which contain right angle triangle. right angle को contain करते हैं ए बी और बी सी. ओके, सो एंड बी इज थर्ड एल्टीट्यूड. नाउ we have right angles in this case also. When AB is perpendicular on BC, we have right angle ABC is equal to 90 degree. And when CB is perpendicular to AB, we again have same angle as 90. Angle ABC is 90 degree. But when BE is perpendicular on AC, we have two right angles. Which are those right angles? BEC and BEA. Both will be 90 degree. So altitudes in right triangle are these. So now let's take an example of obtuse angle triangle. अब हम obtuse angle triangle का एग्जाम्पल लेते हैं. अब मेरे पास एक obtuse angle triangle है इधर. मैं इसको नेम दे देता हूँ A B C. I have named it A B C. अब जब मैंने इसको A B C नेम दिया, अब इसका एल्टीट्यूड अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ फ्रॉम वर्टेक्स ए वर्टेक्स से, ठीक है. सो विल आई एबल टू ड्रॉ विच इज परपेंडिकुलर बी सी? नो, बी सी के ऊपर तो परपेंडिकुलर आ नहीं रहा, अभी भी नहीं आ रहा. हाँ, इधर पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इधर तो
बी सी तो यहीं तक स्टॉप हो रही है, बीस इधर कोई लाइन सेगमेंट ही नहीं है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर जाए। तो हमें क्या करना होगा, सी बी को प्रोड्यूस करना होगा। वी हैव टू प्रोड्यूस सी बी। सिमिलरली अगर मैं सी से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना चाहूँ तो सी से एल्टीट्यूड जो आएगा इस वे में आएगा, बट उसके लिए मुझे ए बी को प्रोड्यूस एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि ये दोनों लाइंस मीट कर जाए, ए बी को एक्सटेंड करके ये मीट करेंगे। तो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ एन एल्टीट्यूड इन केस ऑफ एप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो सी मैंने सी पहले अब सी बी को प्रोड्यूस कर दिया इधर और ए बी को प्रोड्यूस कर दिया। अब मैं इजिली ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकता हूँ एंड फ्रॉम सी। लेकिन जो ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करा है ना मैंने, तो ये जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करा ये परपेंडिकुलर तो हुआ बी सी पे, सी बी पे या बी सी पे, लेकिन उसको एक्सटेंड करने पे, उस साइड को बढ़ाने में, आगे जब हमने सी बी को यहाँ तक बढ़ाया तब जाके ये एल्टीट्यूड हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, ए डी परपेंडिकुलर ऑन सी बी, एंड वी विल से ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन सी बी प्रोड्यूस्ड। जब हम सी बी को प्रोड्यूस करेंगे तभी। सिमिलरली अब सी से जो एल्टीट्यूड आएगा वो ए बी प्रोड्यूस पे एल्टीट्यूड होगा, ए बी पे परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन उसको प्रोड्यूस करने पे, सी लाइक दिस। तो अगेन हमें एल्टीट्यूड मिल गया, सी एफ इज एन एल्टीट्यूड। ओके, नाउ इसमें दो एल्टीट्यूड आउटसाइड द ट्रायंगल आ रहे हैं, टू ऑफ इट्स एल्टीट्यूड ऑफ एन एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, एक्सटीरियर में लाई कर रहे हैं। लेकिन जो एक एल्टीट्यूड है ना विद इन द ट्रायंगल रहेगा, वो कौन सी वर्टेक्स से आएगा, बी से। अब बी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी। तो मैं बी से अगर ड्रॉ करूं सी, तो आई विल गेट दिस एल्टीट्यूड एंड आई नेम इट बी ई, इसको मैं बी ई नेम दे देता हूँ। सो बी इज एन एल्टीट्यूड, और यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री यहाँ पर का बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। सो इन दिस वे वी विल गेट 3 एल्टीट्यूड इन केस ऑफ obtuse angle triangle. Which are those 3 altitude? AD, this one, then BE, this one, CF, this one. AD and CF are outside the triangle. अब इनकी बेस की बात करें तो AD के लिए बेस कौन सा है, CB। फॉर AD अगर हम AD को एल्टीट्यूड मानते हैं ना तो बेस हम क्या मानेंगे, CB मानेंगे, नॉट CD। ये रिमेंबर करना, जो ट्रायंगल के अंदर वाली साइड, ओनली साइड को ही हम बेस कंसीडर कर सकते हैं। तो सी बी विल बी द बेस, एंड व्हेन वी कंसीडर सी एफ एज एन एल्टीट्यूड, बेस विल बी ए बी। बेस उस केस में क्या माना जाएगा, ए बी बेस मानेंगे हम। एंड बी के लिए बेस कौन सा है, व्हेन बी इज एन एल्टीट्यूड, ए सी इज द बेस। नाउ विच राइट एंगल्स वी गेट इन दिस केस, कौन कौन से राइट एंगल्स हमें मिलते हैं जब हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। एक तो एंगल ए डी बी 90 हो गया, देन वी हैव सी एफ बी इज 90 डिग्री, सी एफ ए और सी एफ बी इज 90, एंड एंगल बी ई सी एंड एंगल बी ए और ऑल्सो 90 डिग्री। सो एल्टीट्यूड in the case of obtuse triangle can be drawn in this way. Now another important concept is orthocenter. Orthocenter क्या होता है, जहाँ पर 3 एल्टीट्यूड्स मीट करेंगे, 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल मीट। जैसे अब इधर ए डी बी ई और सी एफ आर मीटिंग एट पॉइंट ओ, सो ओ इज द ऑर्थोसेंटर इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ऑर्थोसेंटर कौन सा है, इसमें 2 एल्टीट्यूड कौन से थे, ए बी and CB, and one of the altitude is BE. So all 3 altitudes are meeting at vertex B of the triangle. So इसमें vertex B जो है ना वो ऑर्थोसेंटर मानी जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल केस में, और obtuse एंगल ट्रायंगल के केस में ऑर्थोसेंटर विल लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, लाइक AD is an altitude, here BE is an altitude, CF is an altitude, and they meet when they are एक्सटेंडेड। जब तीनों एल्टीट्यूड को हम एक्सटेंड करेंगे तभी वो मीट करेंगे। लाइक ए डी को हमने ओ तक प्रोड्यूस किया, ई बी को हमने ओ तक एक्सटेंड किया और सी एफ को भी ओ तक एक्सटेंड किया, एंड दे मीट एट पॉइंट ओ। सो ओ इज द ऑर्थोसेंटर इन केस ऑफ दिस obtuse एंगल ट्रायंगल। सो
our next topic is median of the triangle. अब मीडियन क्या होते हैं ट्रायंगल के? लेट्स रीड द डेफिनेशन फर्स्ट. इसकी डेफिनेशन हम पहले पढ़ते हैं मीडियन ऑफ द ट्रायंगल की. अ लाइन सेगमेंट, सी इन डेफिनेशन इट इज रिटन दैट अ लाइन सेगमेंट joining a vertex, again vertex are A, B and C of the triangle with the midpoint of opposite side is called its median. तो अब अगर A को हम A एज अ वर्टेक्स ले, A को वर्टेक्स माने तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? BC. अब BC का मिड पॉइंट से M है. अब जो AM को लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी ना वो मीडियन होगी. सो AM इज द median in this case. Okay, AM is the median. और मीडियन क्या करता है कि अपोजिट साइड को, जिस वर्टेक्स से वो मीडियन निकल रहा है उसकी अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो BM और CM इक्वल हो गए, यानी कि उसको बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट्स में. तो BM इज इक्वल टू CM. ऐसे ही C से अगर हम मीडियन ड्रॉ करें तो और P तो क्या होगा? CP इज द मीडियन और P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB. और जब P AB का मिड पॉइंट हो गया तो AP और BP इक्वल माने जाएंगे. सिमिलरली इफ N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और इफ आई ड्रॉ अ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स B ऑन अपोजिट साइड AC, तो मुझे क्या करना होगा? अपोजिट साइड AC के मिड पॉइंट N को B से ज्वाइन करना होगा. देन आई विल गेट एन मीडियन BN. अब हमें BN मीडियन मिल गया. ओके, BN मीडियन मिल गया. सो BN divides AC in two equal parts which is equal to AN and CN. So BN is a median in this case, and median always lies in interior of the triangle, चाहे वो right angle triangle हो चाहे वो obtuse angle triangle हो. See, मीडियन हमेशा अंदर ही लाई करेंगे ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में भी, इवन इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. सो थ्री मीडियन हियर आर AM in all three cases, AM, BN and CP are medians. Okay, if AM is a median, अगर हम AM को मीडियन माने किसी भी ट्रायंगल में देख लो बेटा आप, चाहे फर्स्ट ट्रायंगल में देखो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में देखो, हर एक में ये सेम आएगा क्योंकि मैंने सेम नेमिंग लिया है इसमें. तो AM इज अ मीडियन, तो BM और CM इक्वल होगा. एंड व्हेन BN इज अ मीडियन, CN इज इक्वल टू AN हो जाएगा. CN AN के इक्वल होगा और BM CM के इक्वल होगा. और व्हेन CP इज अ मीडियन तो AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा. इसी तरह से इस ट्रायंगल में भी सिमिलर होगा. यू कैन सी BM, व्हेन BN इज अ मीडियन, NC इज इक्वल टू AN हो जाएगा. व्हेन AM इज अ मीडियन, BM और CM होगा. एंड दिस रिजल्ट विल बी यूज्ड इन व्हेन वी आर प्रूविंग द ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स. ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में जब हम प्रूफ करेंगे तब ये सब यूज होंगे या कुछ फाइंड करेंगे. सो अगेन AP और BP इक्वल होंगे. सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी सेम वे में होगा. नाउ सी इन ऑल थ्री ट्रायंगल्स, तीनों ट्रायंगल्स में जो मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स हैं दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट. वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. लाइक AM, BN एंड CP इज मीटिंग एट पॉइंट G. Similarly, in this triangle also, all three medians are meeting at point G. In this obtuse angle triangle also, all three median are meeting at G. So this point G, where three medians of a triangle meet, is called centroid. So what is centroid? The point where three medians of a triangle meet is called centroid. So in this video, we have learned about the median of the triangle and the altitude of the triangle. So if you like my video, please press the like button and share it to your friends and do subscribe to my channel.